All right, so today we will discuss some theorems. In the last class, lecture number 8, we have done some definitions, basic solutions, and basic feasible solutions. The last class, we have done basic solutions. So what is basic solution? याद है किसी को? बेसिक सॉल्यूशन क्या था? हाउ टू फाइंड बेसिक सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सर जब हमारे पास जो है अननोन्स ज्यादा हो गिवन इक्वेशंस के सेवे से तब हम बेसिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाँ, तो सर इसमें हम जो है किसी एक अननोन को हम आर्बिट्रेरी जीरो ले लेते हैं, फिर उसको जीरो लेकर दो को सॉल्व करते हैं। किसी एक को ही क्यों? दो दो n माइनस एम को, जी सर, वन बाय वन। n माइनस एम वेरिएबल्स को। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, m क्रॉस n, n अननोन्स, m इक्वेशंस, तो n माइनस m वेरिएबल्स को जीरो लेंगे ना, एक को नहीं। n माइनस, अब वो अगर आपके पास 3 इक्वेशन से 2 अननोन्स है तो एक हो जाएगा, अदरवाइज n माइनस m वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हें हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। ये कराते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, n बिन शॉर्ट लिख रहा हूँ। और रेस्ट वेरिएबल्स जो आपके m है corresponding to the sub matrix B, that is called basic variables, है ना? बेसिक वेरिएबल्स। तो इसको यस सर। सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकल के आएगा आपका, इसमें n माइनस एम जीरो होंगे, m जो होंगे वो जीरो, नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक सॉल्यूशन। एंड इफ ऑल बेसिक वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अगर बेसिक वेरिएबल भी जीरो आ जाएगा देन इट इज डीजेनरेट, अदरवाइज नॉन डीजेनरेट। ठीक है, ये हमने सब करा था इन द लास्ट लेक्चर, यू कैन सी इट फ्रॉम यूट्यूब आल्सो। देन वी हैव सम थ्योरम्स, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। प्रूफ इसका एक आध का प्रूफ मैं करूंगा, रेस्ट स्टेटमेंट्स ही हैं सिर्फ। थ्योरम 4.1 है, पेज 90 पर। if an LPP has a feasible solution, if an LPP has a feasible solution, then it has a basic feasible solution, then it has a basic feasible solution। basic feasible solution को मैंने बताया था, I will write in abbreviation BFS, एक्रोनिम यूज कर रहा हूँ मैं। तो अगर feasible solution है किसी भी LPP का, तो इसका basic feasible solution भी होगा। ठीक है, थ्योरम ये है आपकी। अगर कोई आपके पास LPP है और उसमें आपके पास feasible solution निकल कर आ गया, रीजन you are getting the region feasible solution है, तो definitely it will have basic feasible solution also। That, so it means what? अब feasible solution क्या होंगे? You know, feasible solution will be finite. You can say there exists only finite number of basic feasible solutions। तो इस पे, और you can say इसकी एक corollary है, so there exist, in fact there exist only finite number of basic feasible solutions to the LPP, to an LPP। फाइनाइट नंबर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो आपने देखा अगर एनएम है तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज थी? एनसीएम आर द चॉइसेस इफ यू हैव अ सिस्टम, है ना? तो एनएम फाइनाइट है, तो यू विल बी हैविंग फाइनाइट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। एंड अ बेसिक, नेक्स्ट थ्योरम 4.2, a basic feasible solution, a basic feasible solution to an LPP
must correspond to an extreme point of the set of all feasible solutions, and conversely. So it means if you have a basic feasible solution, then it must correspond to an extreme point of the set of all feasible solutions. It is the theorem which I was using when I was solving your graphical method problems by the graphical method. है ना? Then I told you in the graphical methods we just check at the extreme points, and at extreme points which is giving you maximum value, that will be optimum value in the maximization problem, which is giving you minimum value, that will be optimum value in the case of minimization problem. तो वही थ्योरम जो मैंने आपको बताया था कि there is a theorem which I was using there. This is the theorem कि BFS to an LPP must correspond to the extreme point. किसी न किसी extreme point पे हमें BFS मिलेगा, and conversely. And you know कि जो हमें extreme point पे BFS मिलेगा, उन्हीं में से एक क्या होता था आपका, क्यों भाई, ऑप्टिमम वैल्यू देता था, है ना? Out of that, at one point you will be having optimum value. ये थ्योरम स्टेटमेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So here you can see that actually it means what? There is, you can say there is one-to-one correspondence between the BFS and extreme point. BFS to an LP must correspond to extreme point and conversely. So it means what? You can say that means there is one-to-one correspondence between the extreme points and the BFS. There is one-to-one correspondence between basic feasible solution and extreme points. And BFS what? Basic feasible solution are finite in numbers. अभी हमने ऊपर देखा इस थ्योरम में there exists only finite, but basic feasible solution are finite in number. This means what? Okay, the extreme points of the convex set of feasible solution are also finite in number. The extreme points भी जो होंगे they will be finite. Extreme points because there is one-to-one correspondence and text में देते हैं. And since there are only finite number of basic feasible solution, finite number of basic feasible solution, so it means the extreme points of the convex set of feasible solution are also finite. Of the convex set of feasible solutions are also finite in number. Also finite in number. Extreme point भी finite आएंगे because of this correspondence. So based on this next theorem, 4.3, that is called fundamental theorem of linear programming. It is fundamental theorem of linear programming, LP. If the feasible
feasible region of an LPP is a convex polyhedron. Then there exists an optimal solution. Then there exists an optimal solution to the LPP, and at least one basic feasible solution must be optimal. So here, this is a fundamental theorem which tells you about the existence. अगर feasible region convex polyhedron है, तो there exists an optimal solution, and at least one VFS must be optimal. उन्हीं में से हमें कोई ना कोई ऑप्टिमल मिलेगा ना. जैसे आपके पास ये कॉन्वेक्स रीजन है, ये रीजन फीजिबल रीजन है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होता था. ग्राफिकल में हम ये सब चीजें कर चुके हैं. एक्चुअली मैं आपको पहले ग्राफिकल कराया था, फिर पीछे चैप्टर्स करा रहा हूँ, इसलिए ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. तो ग्राफिकल में हमने देखा कि व्हेन यू आर गेटिंग द फीजिबल रीजन, तो एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स वी गॉट द सॉल्यूशन है ना. तो वो इसी थ्योरम से था, और उन्हीं सॉल्यूशन में से किसी एक पॉइंट पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाती थी. तो वो यही थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम, कि अगर फीजिबल रीजन इज कॉन्वेक्स है, देन देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द एलपीपी, एंड एट लीस्ट वन बीएफएस मस्ट बी ऑप्टिमल. वन बीएफएस ऑप्टिमल क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन बीएफएस एंड एक्सट्रीम पॉइंट. तो एक्सट्रीम पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब किसी बीएफएस पे एग्जिस्ट करेगा ना. इट्स अ सेम थिंग टू से, है ना. कैन से वन बीएफएस मस्ट बी ऑप्टिमल, और यू कैन से और at least one extreme point, must be optimal, is an optimal solution. एक ही बात है. इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम. इसका प्रूफ कर देता हूं मैं, क्योंकि इसके प्रूफ में हमें ये पीछे थ्योरम का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने उनके स्टेटमेंट्स लिख दिए थे. तो वी हैव टू प्रूव व्हाट, वी हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस, एंड देन वी हैव टू शो दैट दैट सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एट द एक्सट्रीम पॉइंट, है ना. two things are there. So here firstly I have to consider some LPP. कोई LPP consider कर लेते हैं. Suppose I am taking, let the LPP be to determine x such that x color x belongs to Rn. ना सिंगल x नहीं है, टप्पल से. Such that max of z is equal to c transpose x, क्योंकि c1 c2 cn लेंगे आप, subject to the constraints ax is equal to b and x greater than equal to 0, where this c x ये सब Rn पे बिलोंग करते हैं. ए आपकी कोई मैट्रिक्स हो m क्रॉस n की, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे मैंने इक्वालिटी ले ली है सॉल्व करने के लिए. आप चाहे लेस देन इक्वल टू ले लें, इक्वालिटी ले सकते हैं, क्योंकि उसको हमें अल्टीमेटली सिलेक्ट सरप्लस यूज करके फिर इक्वालिटी बनाना होता है. यू कैन कंसीडर लेस देन इक्वल टू आल्सो, यू कैन टेक, मैंने इसे क्या लिखा इस टाइम, आई एम जस्ट राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ इक्वालिटी होती है. ठीक, this is the LPP suppose. Now is it clear?
यस तो सर। भाई Yes, ये sir. हमने एक एलपीपी कंसीडर कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया है मैंने. नाउ आई विल शो दैट एन एलपीपी का ये गिवन है कि फिजिबल रीजन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, है ना. ये कंडीशन है कि फिजिबल रीजन शुड बी अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन. तो इसका फिजिबल रीजन क्या होगा? देन द फिजिबल रीजन सपोज अगर हम उसे एस से डिनोट कर दें, एस of the LPP is given by S is equal to feasible region क्या होगा भाई? All the points satisfying the constraints, है ना. ये जो constraints हैं आपके, that is a feasible region. S में क्या आएगा? Collection of all x such that ax is equal to b and x is non-negative. ये तो feasible region है. Now it is given that S is convex polyhedral, है ना. ये हमें गिवन है कि ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल बनाएगा. वी नो फिजिबल रीजन फॉर्म्स कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल. सिंस S is convex polyhedral, it will be what? It must be non-empty, closed and bounded. तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है तो क्या होगा? नॉन एम्प्टी क्लोज बाउंडेड, है ना. यू नो पॉलीहेड्रन क्या है? ऑल द पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ Li. तो जब आप पॉलीहेड्रन बनाएंगे तो क्या आएगा? ये मस्ट बी नॉन एम्प्टी. तीन होंगे तो कुछ ट्रायंगल इस टाइप. नॉन एम्प्टी होगा, क्लोज्ड होगा एंड बाउंडेड होगा. तो अगर नॉन बाउंडेड भी है, क्लोज भी है, तो इट मीन्स व्हाट? देन मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वो कहाँ आएगी? विद इन एस आएगी. देयरफॉर जेड, इसको हमने जेड माना था, मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू सी एक्स. देयरफॉर जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम ऑन एस. इट्स मैक्स ऑन एस, है ना. तो इसी में से सॉल्यूशन निकल के आएगा आपके पास. दिस इज द फिजिबल रीजन. और ये बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल बी हैविंग a optimum value within this x. So z will attain its maximum on s. That means thus there exists an optimal solution. There exists an optimal solution. यहाँ पे वो वाला केस डिस्कार्ड हो गया कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन की वजह से, जो हमने लिया था आपका, जो स्पेशल केस में केस लिया था. कौन सा केस था वाला? सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था. इसको क्या था? नो सॉल्यूशन, है ना. वो कब था? जब आपका कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं था. So here Z attains its maximum on S. That means there exists an optimal solution. Now, next thing is what? So one thing is done कि एक solution exist करेगा. Next thing what? कि जो solution exist करेगा, it will be at least at one of the extreme points. At least इसलिए कहा more than one extreme point पे भी हो सकता है. That is the case of alternative optima. So now for the second part, since S is convex polyhedron, S is convex polyhedron, by the definition it has finite number of extreme points.
finite number of extreme points. कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है तो इसके फाइनाइट नंबर एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे. लेट देयर these be x1 x2 xk belongs to s. सपोज हमने मान लिया कि इसके x के एक्सट्रीम पॉइंट्स है. ओके, x1 x2 xk. देन by the definition of convex polyhedron, S will be what? जो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है क्या होगा इन एक्सट्रीम पॉइंट से जनरेटेड होगा. I can write generated by xk. Generated means what? All the linear convex combinations of these. बताइए. S convex polyhedron है and if it has finite number of extreme points, ना ये हमने भी देखा पीछे थ्योरम से कि अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, है ना. तो फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे तो बाय द डेफिनेशन ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कैन बी रिटन एज ए जनरेटेड बाय द एक्सट्रीम पॉइंट्स. क्योंकि क्या होता है इनका कॉम्बिनेशन करोगे तो ये तो आएगा सारा. ये क्या है? स्पैन ऑफ x1 x2 x3. ओके, so by the definition S can be written as a generated by x1 x2 xk. इसका मतलब क्या है? This implies that any x belongs to S. कोई भी हम x ले ले, it can be written as x is equal to क्या? Summation I is equal to 1 to k alpha I xi. किसी भी x को हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन इनफैक्ट, वेयर अल्फा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन अल्फा i इज इक्वल टू 1, है ना. ये रेस्ट्रिक्शन है. फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to k. बोलिए, ये स्टेप क्लियर है? मैं बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ कहाँ स्टूडेंट्स बताइए भाई. नियाज अहमद यस सर. बताइए, ये क्लियर? इज इट क्लियर? एनीथिंग इट्स नॉट क्लियर हियर? यस सर. यस. So here, because S is generated by these finite number of extreme points, it means any x, अगर मैं कोई भी x दूं इसमें S में feasible region में, it can be written as a convex combination of these extreme points x1 x2 xn. Convex combination है summation alpha i1. Now अब because optimal solution exists, अभी हमने देखा there exists an optimal solution. Suppose z naught है, let z naught is equal to max of ct xj. i लिया तो i ले, पीछे हमने i लिया तो ct xi, i लिख लीजिए. ct xi I is equal to 1 to k. ये क्या किया हमने? Because you have z is equal to maximize of this problem. तो यहाँ पर कुछ x1 x2 ऐसे होंगे जिस पे आपके पास इसकी वैल्यूज आएगी और कोई एक पेयर ऐसा होगा जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी. हमने मान लिया कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? z नॉट है. सपोज z नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ct x. अभी xi के आप ct x1 c2 x2 एंड सो ऑन, यू विल पुटिंग ct x के. तो उन सारे एक्सट्रीम पॉइंट में से किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है z नॉट है ना. जो भी मैक्सिमम दे रहा होगा, हो सकता है x1 पर आ जाए, हो सकता है x2 पे आए ना.
ये ध्यान रखना है कि ये एक्साइज जो है ये पॉइंट्स कहाँ के हैं, ये एस में बिलोंग कर रहे हैं जो सबसेट ऑफ आर एन है। तो x1 मीन्स नॉट सिंगल पॉइंट, x1 का मतलब है n टपल्स। सपोज z नॉट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस, जो भी मैक्सिमम दे रहा होगा, विच व्हाटएवर द एक्सट्रीम पॉइंट गिविंग यू मैक्सिमम वैल्यू, देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू s, कोई भी आर्बिट्रेरी हम x की वैल्यू ले, तो z जो सी टी एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी सी टी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज, अब any x can be written as linear combination of the extreme points. So this I can write summation alpha I xi by this. Any arbitrary x can be written as this alpha I xi, or this you can say summation alpha I ct को अंदर ले जाएगा c transpose xi. Okay, and this I can write less than equal to, इसमें सी टी एक्स आई में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू जेड नॉट लिखें तो इट विल बिकम लेस देन इक्वल टू समेशन अल्फा आई जेड नॉट, विच इज जेड नॉट, क्योंकि जेड नॉट कुछ क्वांटिटी होगी, दिस इज 1, सिंस समेशन अल्फा आई इज 1, समेशन अल्फा आई की वैल्यू 1 है, दिस विल इक्वल टू जेड नॉट. तो इट मींस व्हाट, दिस मींस दैट जेड विल बी लेस देन इक्वल टू जेड नॉट for any x belongs to S. That means the maximum value of Z is attained at the, it means what? It will be the maximum value and which is attending at one of the extreme points of S. ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स थे x1 x2 जो भी वैल्यू कर आएगी, और यहाँ पे z की वैल्यू जो थी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट थी, तो आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ले लें वो z नॉट से लेस आएगा, और z नॉट क्या है आपके पास, z नॉट इज द वैल्यू एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना, ये x1 x2 के एक्सट्रीम पॉइंट्स. इट मींस व्हाट, दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is attained at one of the extreme points of S. So यही हमें प्रूव करना था कि exist at one of the extreme points या at one of the basic feasible solution must be optimal, because there is 1-to-1 correspondence. So you can say, or you can say that at least one basic feasible solution must be an optimal solution, because there is 1-to-1 correspondence between extreme points and BFS. ठीक है, तो ये एक थ्योरम थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे फिर से समझिएगा अपने आप. नेक्स्ट थिंग वी हैव नाउ सिंप्लेक्स मेथड. बिफोर दैट वी हैव सिंप्लेक्स एल्गोरिथम. देखो सिंप्लेक्स मेथड जो है ये पूरी एक एल्गोरिथम है, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम. I will explain how to write, how to solve any problem by simplex method. Any problem, चाहे it is given in function of in 2 decision variable, 3, 4, कितने भी key decision variables हो, I can use this simplex method. And by the simplex method, we can find the optimum value of the problem. जो हमने problems करी पीछे आपने देखा ग्राफिकल से सॉल्व करी थी, तो up to 2 decision variables we can solve graphically easily. But if you have more than 2 variables, then we use this simplex algorithm. The simplex algorithm is also work same as graphical method. इसमें भी हम different tables बनाएंगे and we will be moving from one extreme points to another extreme points, है ना, वैल्यू चेक कर रहे होंगे from one to another extreme points, क्योंकि थ्योरम अभी हमने प्रूव करी है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकली नहीं मूव कर रहे होंगे,
by this algorithm we will be moving from one extreme point to another and we will be checking, जहाँ पर भी हमें optimal solution मिल जाएगा we will stop our process and we will get the answer, है ना। तो algorithm क्या है? Firstly we assume that initial basic feasible solution always exists. Initial BFS always exist. ठीक है, ये हमारा assumption होगा कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा प्रॉब्लम का, है ना। आपके पास प्रॉब्लम गिवन है, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्टिंग योर फर्स्ट स्टेप इज विल बी व्हाट, दिस फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वैसे ही जैसे पीछे बताया मैंने आपको, n-m वेरिएबल्स को 0 पुट करेंगे और सिस्टम को सॉल्व करेंगे, तो जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी बेसिक सॉल्यूशन। उसे हम मान के चलें बेसिक फिजिबल होना चाहिए वो, because feasibility condition is always there in the LPP. Okay, so step 1, सुनने में स्टूडेंट्स आ रहे, इससे इंपॉर्टेंट थिंग नाउ सिंपलेक्स मेथड, उसकी एल्गोरिथम है ये। हाँ, इसे ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम से आगे अब सारी, अब आगे से सारी प्रॉब्लम्स आनी है बस। तो फर्स्ट थिंग दिस वी विल कंसीडर, है ना। प्रॉब्लम में मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा थ्योरी लिख रहा हूँ मैं ताकि चीजें क्लियर हो। वहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एल्गोरिथम से आ रहा है, तो इट इज एल्गोरिथम, है ना, जो मेथड ऑफ प्रोसेस में लाएंगे। फर्स्ट थिंग दिस, तो स्टेप 1 इज व्हाट, योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। वी विल ऑलवेज टेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप। Objective function should be of max type. Max type, अगर max में नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, you know. If not, then change it by minimum of z is equal to z star minus max of minus z, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वो मिनिमम वैल्यू आ जाती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमम में हो, क्या करना है आपको, माइनस जेड, यानी कि माइनस में सॉल्व करके चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे और बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको मैंने बताया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग योर कैनोनिकल फॉर्म्स, याद है? यस सर। हाँ। सेकंड स्टेप, ऑल BI मस्ट बी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। BI मीन्स योर राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स। जो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स होते हैं आप लिखते हैं लेस देन इक्वल टू B1 B2, ये जो BI राइट हैंड साइड, दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव। 0 हो सकते हैं लेकिन दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव, आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव है तो हम मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बनाएंगे, 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज सेकंड कंडीशन। ओके, थर्ड थिंग, थर्ड स्टेप, एक्चुअली स्टेप्स हैं हमारे। थर्ड स्टेप, कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटीज इनटू कन्वर्ट convert all the inequalities into equations, equations या इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इसके लिए क्या करना होगा भाई? सर प्लस एडिशन, यस। सारे मेथड देखो वही चल रहा है जैसे ग्राफिकल में कर रहे थे, यहाँ पर भी वही चीज है अभी तक कि हम चेंज करेंगे। वहां पे क्वेश्चन हम चेंज नहीं करते थे क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी होती थी, तो हम बिना चेंज करे लाइन ड्रॉ करके एरिया निकाल लेते थे फिजिबल रीजन का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें प्लॉटिंग नहीं करनी, यहाँ कैलकुलेशन करनी है, तो वी हैव टू कन्वर्ट
into equations by using select surplus variables. Fourth step is obtain an initial basic feasible solution. शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ IBFS. ये सब टर्म में आगे यूज करूंगा प्रॉब्लम में, इसलिए यहीं से बता दे रहा हूँ. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. इनिशियल का मतलब क्या हुआ, जो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन है. एक्चुअली हियर यू विल बी हैविंग इटरेशंस, है ना, इटरेशंस चलेंगी हमारी. आइट्रेशन क्या होता है, एक स्टेप करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर रिपीट करेंगे जब तक के सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. तो फर्स्ट आइट्रेशन जो आपके है, हाँ जैसे वहां करते थे न्यूमेरिकल. जी जी, वहाँ पे आपका एक मेथड था, वैल्यू निकालते थे, रखते थे, फिर निकालते थे, फिर जब तक कि यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, है ना. तो जैसे तो आइट्रेशंस होती है. तो यहाँ पर क्या आपका इनिशियल ऑब्टेन एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये कैसे आता है आपको मालूम ही है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है. एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं ना. ये पहले assumption है हमारा कि प्रॉब्लम का IBFS एग्जिस्ट करेगा, उसे हम ऑब्टेन करेंगे. तो कैसे ऑब्टेन करेंगे आपको मालूम है, बाय पुटिंग n माइनस m वेरिएबल्स टू 0, है ना. बाय पुटिंग n माइनस m वेरिएबल्स टू 0, इनिशियली, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख दूं. इनिशियली वी कंसीडर B as an identity matrix. B as an identity matrix. That means B is equal to I. B जो आपकी सब मैट्रिक्स थी, जब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, B जो सब मैट्रिक्स थी, ये क्या थी? B सब मैट्रिक्स होती थी आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नहीं आइडेंटिटी नहीं होती थी. यहाँ पर हम आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे. B आपकी क्या थी, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था आपके पास A, उसकी एक सब मैट्रिक्स थी m क्रॉस m की, है ना. यस सर. B के अंदर जो एंट्रीज होती थी वो क्या होता था, अगर याद हो तो, कोएफिशिएंट होते थे ना, 2 1 1 1 3. ये क्या होते थे कि अगर आपके पास x1 x2 x3 सपोज ये है, तो अगर x3 को हमने 0 पुट किया तो x1 x2 के कोएफिशिएंट जो हुए ये तो होते थे. यस सर. यहाँ पर हमें जो B बनाना है, अब आपके पास क्या होगा, देखो जब आप इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो आप सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करेंगे, और जब सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करेंगे उनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि आप सिर्फ उन्हें ऐड करेंगे, उसमें 2x1 या 3x2 को ऐड करेंगे. तो जो वेरिएबल प्रॉब्लम में गिवन होंगे उनके साथ तो आपके पास 2 3 कुछ डेटा